Hello students, now the today's topic is general characters of algae and we continued with pigments. In pigments we studied about the chlorophylls. Chlorophyll A, B, C, D, E is present in the algal group and there are carotenoids which are fat soluble, yellow colored compounds. There are two types of categories in carotenoids. Carotenes and xanthophylls. Carotenes are unsaturated hydrocarbons while xanthophylls are oxygen derivatives of carotenes. कैरोटीन्स के अंदर ऑक्सीजन ग्रुप एब्सेंट होता है जबकि जो xanthophylls हैं उनके अंदर सेम स्ट्रक्चर है बट देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अप्रोक्सीमेटली 40 टाइप्स के xanthophylls कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. द अनदर पिगमेंट इज फाइकोबिलिन्स. फाइकोबिलिन्स वाटर सॉल्युबल हैं जबकि क्लोरोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं. These are water soluble, colored it may be red or blue. Due to the presence of phycoerythrin, red color appears, and due to presence of phycocyanin, blue color appears. These are associated with the protein moiety and because of that these are called as billiproteins. So these are phycobilins. On the basis of presence of different pigments along with chlorophyll A, जो algae की different classes हैं उनमें algae को classify किया गया है. जैसे कि chlorophyll A plus B is found in green algae, chlorophyll A plus C is found in xanthophyceae, chlorophyll E is found, A plus E is found in red algae. So इस basis पर जो एल्गी हैं उनको क्लासिफाई किया गया है और जो डिफरेंट फाइकोबिलिन्स और कैरोटिनॉइड्स हैं उनसे जो एल्गी हैं दीज अपीयर्स डिफरेंट कलर. Now the next character is flagella. Flagella are the locomotory organs of the algae. The position and the number as well as the type of flagella is constant in a algal type. फ्लैजिला कहाँ से अराइज होते हैं? जो फ्लैजिला है सेल के अंदर inside the cell there are present blepharoblast. Blepharoblast are the basal granules which are present in cytoplasm और वो पास करते हैं थ्रू ए पोर जो कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के थ्रू पास होता है एंड from these blepharoblast flagella are arising. So these are basal granules which are present in cell cytoplasm और जो flagella के पोर के थ्रू flagella पास होता है किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जहाँ के थ्रू पास होकर it give rise to flagellal filament. फ्लैजिला का स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक है ये सेल्स तो इनके अंदर 9+2 अरेंजमेंट इज फाउंड. 9+2 अरेंजमेंट में क्या है? देयर आर 9 doublets are found in the periphery and 2 singlets are found in center. So this is cross section of flagella of eukaryotic cell or algae. 2 टाइप्स के फ्लैजिला मिलते हैं एल्गी के अंदर, विप्लैश और एक्रोनिमेटिक टाइप विच आर लार्ज एंड स्मूथ, जो कि बड़े और स्मूथ होते हैं इस तरीके से. दिस इज सेंट्रल एपिकल फ्लैजिलल पोजीशन. और टिंसल और पेंटोनिमेटिक टाइप में शॉर्ट और हेयरी होते हैं. देखिए इस तरीके से इनके अंदर टिंसल टाइप में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. सो 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, विप्लैश जो कि स्मूथ होते हैं और लार्ज होते हैं, टिंसल जो कि शॉर्ट होते हैं और हेयरी होते हैं. सो next general character of algae is nutrition and their reserve food material. Nutrition is the mode of nutrition is autotrophic mode of nutrition because of the presence of chlorophyll. और इनके अंदर जो reserve food material है वो ट्रू स्टार्च और ऑयल या फिर ल्यूकोइसिन स्टार्च प्रेजेंट होता है या फिर लेमिनेरियन स्टार्च या फ्लोरिडियन स्टार्च, मैनिटोल, साइनोफाइसियन स्टार्च. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्च आर फाउंड which are present as a reserve food material. Next character is reproduction. Reproduction occurs by 3 modes: vegetative, asexual and sexual mode of reproduction. Vegetative reproduction occurs by cell division, fragmentation and formation of secondary protonema as well as tubers.
Fragmentation is found in filamentous algae. Cell division is a normal vegetative reproductive character. सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या होता है कि जैसे जो फिलामेंटस एल्गी होती हैं उनके अंदर जिस टाइम पे जो स्पोर है वो जर्मिनेट होता है, दैट स्पोर गिव राइज टू प्राइमरी प्रोटोनिमा. बट इन सम algae, this primary protonema give rise to another filament, and this filament get detached. This is called as secondary protonema, which is arisen from primary protonema, this filament. And this protonema, that is secondary protonema, will form the new algae. सम एल्गी में ट्यूबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर लॉट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च इज प्रेजेंट, जो कि बनाएंगे न्यू एल्गी. सो दीज आर वेजिटेटिव मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होती है, बट देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज एब्सेंट. और स्पोर्स जो होते हैं वो वेजिटेटिव सेल से बनते हैं. अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग एल्गी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. जैसे जू स्पोर्स आर द मोस्ट कॉमन स्पोर्स जो कि फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं. फेवरेबल सीजन के अंदर जो एल्गी की सेल है, इट्स प्रोटोप्लास्ट गेट डिवाइडेड इनटू मैनी कंपार्टमेंट्स एंड आफ्टर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और जो कंपार्टमेंट डिवाइड होंगे उनमें सब में एक एक न्यूक्लियस होगा, एंड देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट कंपार्टमेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ मोटाइल एल्गल सेल, जो कि जूस्पोर जिसे हम बोलते हैं. तो एक सेल के अंदर बहुत सारे जूस्पोर बनते हैं. 2 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं, 16 बन सकते हैं, बट मल्टीपल ऑफ 2 बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन. जो अनदर मेथड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनेंगे, एक्नीट्स बनते हैं. एक्नीट्स आर द स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल सीजन. और ये क्या होते हैं, इनकी शेल जो होती है वो काफी हार्ड होती है, थिक वॉल्ड होते हैं और सिंगली बनते हैं सेल के अंदर, या फिर जो एक्नीट की सेल्स जो बनेंगी वो रो में बनेंगी. अनदर टाइप ऑफ स्पोर्स आर एक्सोस्पोर्स. एक्सोस्पोर्स बाहर की तरफ बनते हैं और एंडोस्पोर्स सेल्स के अंदर बनते हैं. प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो एंडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेल. जो प्रोटोप्लास्ट है उसके अंदर बनते हैं एंड दीज आर सराउंडेड बाय द वॉल. बट जो एक्सोस्पोर्स हैं वो आउटर साइड पे बनते हैं. ये देखिए जो सेल का प्रोटोप्लास्ट की सेल वॉल है वो रप्चर होकर जो एक्सोस्पोर्स हैं वो बाहर की तरफ अराइज हो रहे हैं इन रो, जबकि एंडोस्पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. जो ईच सेल है वो कन्वर्ट हो जाती है एंडोस्पोर में, थिक वॉल्ड स्पोर्स में, जैसा कि हमने बैक्टीरिया में भी स्टडी किया था. पामेला स्टेज क्या है, जैसे जूस स्पोर्स बने हैं सेम वे में जूस स्पोर्स बनते हैं बहुत सारे, एंड दीज जूस स्पोर्स फॉर सम टाइम गेट कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ in this form and they give the appearance of a palm. That's why the stage is called as Pamela stage, but it is short period and temporary. Another mode of reproduction in bacteria in algae is sexual reproduction. In sexual reproduction, there is fusion of two specialized sex cells called gametes to produce diploid structure. So there is formation of gametes and the gametes will fuse to form zygote. थ्री मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी. आइसोगैमी इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच there is fusion of morphologically as well as physiologically identical gametes, but the strains of these gametes are different, plus and minus strains. ये देखिए दोनों gametes जो हैं plus and minus strains के हैं, और these are not called male and female gamete, but these are two different gametes of different strains, and the act of fusion is called as conjugation. और जबकि जो resultant spore बनता है उसको क्या बोलते हैं, zygospore. एनाइसोगैमी के अंदर देयर इज फ्यूजन बिटवीन टू डिसिमिलर गैमेट्स. जो गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट भी हो सकते हैं या फिर फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं. मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट में द मेल गैमेट इज स्मॉलर इन साइज and more active, smaller in size, and while the female gamete is larger in size. Both are flagellated, appearing same, but there is difference of size.
एक्ट ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड जाइगोट। जबकि फिजियोलॉजिकली डिफरेंट में क्या है, दोनों मॉर्फोलॉजिकली सेम है बट फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करेंगे। एक मेल की तरह एक मेल की तरह परफॉर्म करेगा और एक फीमेल गैमेट की तरह परफॉर्म करेगा। सो दिस इज एन आइसोगैमी। The most advanced mode of sexual reproduction in algae is oogamy. Oogamy is the advanced and highly evolved mode. इसके अंदर क्या होता है, there is formation of a special structure antheridium and oogonium. In oogonium there is formation of egg cell, and in the antheridium there is formation of antherozoids, motile male gametes. These are antherozoids. Motile male gametes बनते हैं और बहुत सारे बनते हैं, and each is uninucleated. ठीक है, and the antherozoids are very small in size while oogonium is large in comparison to antherozoids. जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होता है, मोटाइल होता है एंड एक्टिव होता है और लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल गैमेट्स होते हैं वो पैसिव होते हैं, मींस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल, यूजुअली नॉन मोटाइल होते हैं। लार्जर, these are single and they remain inside the gametangium. Gametangium is the structure in which the gamete is formed. So the both antherozoid and egg cell fuse to form zygote. The fusion of motile male gamete with the non-motile egg cell is called oogamy. So these are three different modes of reproduction in algae. Now life cycle. Different types of life cycle are found in algae, and life cycle is what? Life cycle में क्या होता है? There is reoccurring sequence of morphologically as well as cytologically different phases of an organism. मतलब दो different phases या तीन different phases जो कि morphology में भी different हों और cytologically भी different हों, वो बार बार sequential way में अपीयर होते हैं लाइफ टाइम में, उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल. So there are two different phases in the algae, haploid and diploid phase. These phases alternate with each other by two processes of meiosis and fertilization. Meiosis होगा तो haploid phase appear होगा, fertilization होगा तो diploid phase appear होगा. किस तरीके से? इस वे में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइड है, ठीक है, गैमेटोफिटिक है वो हैप्लॉइड होगी, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. माइटोसिस से ही गैमेट्स बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, सो इट कैन नॉट अंडरगो मियोसिस. So there is formation of haploid male and female gametes. These get fertilized. So fertilization is the first process. Now there is formation of diploid zygote. Zygote is acting as sporophytic phase. Sporophyte या तो स्पोरोफाइट बनेगा या फिर जाइगोट ही स्पोरोफाइट की तरह एक्ट करेगा बिकॉज इट इज डिप्लॉयड, एंड देन दिस डिप्लॉयड जाइगोट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड स्पोर्स. These spores germinate to form gametophyte. So there is alternation of gametophytic and sporophytic phases. So the succession of two cytologically distinct phases called alternation of generation means दो generation alternate कर रही हैं. जो डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल्स हैं वो है हैप्लॉन्टिक टाइप. हैप्लॉन्टिक टाइप में मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड एंड इट इज गैमेटोफाइट. द डिप्लॉयड फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट ओनली. दिस इज स्पोरोफिटिक फेज. सो देयर इज डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट. जाइगोट कोई डिस्टिंक्ट साइटोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, तो alternation of distinct phases is absent, but there is formation of gametophyte and zygote. So the type is called haplontic type. Why? Because जो major life cycle का part है वो haploid गुजर रहा है, ठीक है, gametophyte के फॉर्म में गुजर रहा है, haploid फॉर्म में. डिप्लॉन्टिक टाइप में डिप्लॉयड हो गई, जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड होगी. सो इट इज कॉल्ड एज स्पोरोफिटिक. हैप्लॉइड फेज जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय गैमेट्स ओनली. तो इसके अंदर भी क्या है कि जो डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन है गैमेटोफाइट या उसका, वो अपीयर नहीं हो रहा है. सो देयर इज डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट. बट डिप्लॉन्टिक टाइप क्यों है? क्योंकि जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड है, तो जो मेजर फेज है वो उसका डिप्लॉयड पास ऑन होगा, लेकिन सिर्फ हैप्लॉइड फेज गैमेट्स में आएगा. डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप में there is sequential reoccurrence of two well-developed somatic phases or vegetative individuals, the gametophyte and the sporophyte.
distinct alternation of generation is found in diplohaplontic type life cycle, and there is a distinct alternation of generation between a haploid gamete producing gametophyte phase and a diploid spore producing sporophytic phase. तो इसमें जो दोनों phases हैं वो बिल्कुल morphologically different appear होते हैं plant algae की life cycle में. टू टाइप्स की लाइफ साइकिल मिलती हैं इसके अंदर डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप में, डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन टू सोमेटिक फेजेस, आइसोमॉर्फिक एंड हेटेरोमॉर्फिक. आइसोमॉर्फिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोमॉर्फिक. इसके अंदर क्या है कि दोनों फेजेस मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है बट उनके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं. ठीक है, एक में स्पोर बन रहे, एक में गैमेट बन रहे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाइगोट से ही वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरोफिटिक फेज को. हेटेरोमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी प्रेजेंट होगी. Another type of life cycle is haplodiploidic type life cycle और haplobiontic type. इसके अंदर 3 phases होते हैं. डिप्लोहैप्लॉन्टिक में 2 phases थे, यहाँ पर 3 phases हैं, 3 somatic phases. ट्राइफेजिक हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल, ट्राइफेजिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ट्राइफेजिक हैप्लोबायोन्टिक में क्या है, हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है. इसका मतलब 2 गैमेटोफिटिक फेजेस प्रेजेंट होंगे एंड 1 स्पोरोफिटिक फेज प्रेजेंट होगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट. इट इज फाउंड इन पोरफायरा. ठीक है, जो गैमेटोफाइट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे मॉर्फोलॉजिकली. तो क्योंकि 3 फेजेस में हैप्लॉइड जो है वो डोमिनेंट है तो इसलिए इसका नाम हैप्लोबायोन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक है. इसमें क्या है, ट्राइफेजिक 3 फेजेस हैं, डिप्लोहैप्लॉन्टिक मतलब 2 डिप्लॉयड फेजेस हैं इसके अंदर. कैरेक्टराइज्ड बाय वेल डेवलप्ड साइटोलॉजिकल कंडीशंस. देयर आर 3 सोमेटिक फेजेस, 1 हैप्लॉइड एंड 2 डिप्लॉयड. तो 2 डिप्लॉयड फेज हैं इसलिए डोमिनेंट कौन है, डिप्लॉयड, इसलिए इसका नाम डिप्लोहैप्लॉन्टिक. इट इज फाउंड इन पॉलीसाइफोनिया जो आपके टाइप स्टडी है. सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी.